Hello everyone, welcome to ProTrainee's Microsoft demo. I am Manish, your host for today's session. Let me give a brief introduction about who we are. ProTrainee is a NSRCL IM Bangalore pre-incubated edtech startup. We are registered with Startup India, Startup Odisha, and OCF. Landing skill required which precisely fit market demand is tougher than landing a job itself. That's where we come into play. We prepare engineering students to be industry ready by training them for the essential required in the field. We believe that skill based and practical knowledge with the help of our experienced experts. Our only aim is to build skilled workforce for the civil engineering industry and to create thought leaders of tomorrow. ProTrainee brings you an evolving industry-ready environment to tackle ever-shifting business scenario. As an educational platform creator, be upskill engineers in technical domains as per current industry trends, from theoretical concepts like structural engineering, bridge engineering to software training like Oracle, Primavera, ETABS, AutoCAD. We offer 360-degree holistic development required for civil engineers to become an industry professional. We recently conducted an industry-ready long course on tendering, billing, Primavera, highway engineering, etc. etc. And good results in this session has motivated us to go beyond our boundaries and get more for all of you. To be updated with our upcoming amazing courses, go and follow our LinkedIn page, Facebook page by name ProTrain. Now I'd like to introduce our expert, Mr. Anshit Gupta, who have joined our sources to make everyone industry ready. Now I request sir to start the session. You may start now, sir. Good evening, everyone. Welcome to the demo session of Microsoft Projects. My name is Anshit Gupta. I'll just start sharing my screen now. So the course that we are coming with is for Microsoft Projects, and it is going to be an intermediate as well as an advanced level. Both the things we are going to cover in this course. The course tenure is going to be of 21 days, 1 hour daily. That is 21 hours total. So before starting, I'll just give you a small introduction about myself. My name is Anshit. I have done civil engineering and advanced construction management from Nikmar, Pune. After that, I have worked for 3.5 years as deputy manager, project planning and operations in Shapurji Palanji and Company Private Limited. And after that, since last 2.5 years, I am running my own construction company as well as teaching various softwares and various subjects with ProTrainee. So the softwares and the subjects that I have covered with are basically for MSP. We have taken 6 to 7 batches. I have taken 2, 3 batches of risk management, 7 to 8 batches I have taken of tendering, bidding, and contracts and claims management, quality, safety, various other topics we have completed. So during my job tenure, my areas of expertise was basically complete project planning, which obviously includes planning on MSP and Primavera, but basically software part is just a small part of planning. Various other things that you do beside using the software are materials management, logistic management, costing, budgeting, preparation of CTC, preparation of various reports, calculating and monitoring project risk, etc. And on software we do project scheduling, tracking and monitoring, tracking project delays, preparation of catch-up plans, etc. So the softwares that I'm well versed are Advanced Excel, MSP, Primavera, Primavera Risk Analysis, which is an advanced, an additional part of Primavera, SAP, and AutoCAD. So this was just a small introduction about myself. Now, in today's session, as it is a free demo session for everyone, first I'll take you through the throughout the course contents. That is basically what I'm going to cover in the 21 days session of MSP that I'll be talking about today. And after completing my taking the complete syllabus, what I'm going to take after that, I'll be giving you some small brief introduction of Microsoft project. Obviously, we cannot cover a software in 40-45 minutes.
सो बेसिकली क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं थ्रू आउट द सेशन। सबसे पहले हमारे सेशन स्टार्ट होगा बहुत ही बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग से, बिकॉज कोई सॉफ्टवेयर आपको सीखना है तो आपको पहले प्लानर तो नहीं पूरा बना सकते एमएसपी सिखाते सिखाते। प्लानिंग रिक्वायर्ड सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, बट बेसिकली बिकॉज एमएसपी एंड प्राइमावेरा बोथ आर प्लानिंग सॉफ्टवेयर, सो एक बेसिक प्लानिंग पे मैं उतना टचअप करता हूँ जितना नेसेसरी है सीखने के लिए एमएसपी। सो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग हम सबसे पहले कवर करते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि बेसिकली प्लानिंग क्या होता है, एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर एक्टिविटीज क्या होती हैं, व्हाट आर लीड एंड लैग, व्हाट आर क्रिटिकल पाथ, what is activity sequencing, what is project scheduling, what is project tracking, project monitoring and control। ये सारा टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशंस के अलावा बेसिकली टेक्निकली इन सब चीजों का क्या मीनिंग होता है, दैट आई कवर इन दी फर्स्ट एंड सेकंड सेशन ऑफ एमएसपी। सो बेसिकली आपको जो भी डाउट्स हो, आपको एंड के सेशन में डाउट्स सारा पूछने के लिए टाइम मिलेगा। दैट टाइम you can unmute also, that time you can ask doubts in the chat box also. Everything you will get time at the end of the session. I hope my voice is audible, clear enough. Yes, sir. Yeah. So after that फिर हम एमएसपी के कुछ बेसिक्स पे चलेंगे। एक थोड़ा सा स्मॉल हिस्ट्री एमएसपी का, यूजेस क्या क्या है एमएसपी के, व्हाट आर द टाइप ऑफ टास्क लिंक्स दैट यू कैन क्रिएट इन एमएसपी। एमएसपी के दूसरे प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स पे जैसे प्राइमावेरा एंड टैब्स, दूसरे सारे सॉफ्टवेयर्स पे एमएसपी के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, हमारी इंडस्ट्री में एमएसपी कौन यूज करता है कौन नहीं करता है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर वी विल स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। अब कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते टाइम सबसे द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली टैब्स। कोई भी सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से टैब्स हैं, उनके क्या फंक्शनैलिटी है, जो कि बहुत ही एक अल्ट्रा बेसिक होता है। सो बिकॉज एमएसपी इज जस्ट अ व्हाई नॉट लिसनिंग सर, आप लास्ट में डाउट्स पूछ सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द डाउट्स दैट यू आर पोस्टिंग इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। आप लास्ट में डाउट्स आप सारे पूछ सकते हैं लास्ट के 10-15 मिनट्स। राइट नाउ आई हैव टू लाइक take you all through the session. You will get enough time to ask doubts at the end, no issues. Uses and functions आपको सारे tabs के MSP के I'll tell you which are file, task, resource, report, project, view, format tab, जो कि हर सॉफ्टवेयर का बेसिक होता है। बेसिकली MSP भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, एंड एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड हम लोग वी हैव ऑल बीन यूजिंग सिंस चाइल्डहुड। आई थिंक 4th 5th 6th क्लास से सब लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली टू लर्न एमएसपी यूज करने के लेवल पे इज क्वाइट इजी कंपेयर टू अदर प्लानिंग सॉफ्टवेयर। जैसे प्राइमावेरा इज एन ओरेकल सॉफ्टवेयर, सो इट्स अ टफ जॉब टू लर्न अ न्यू इंटरफेस ऑल टुगेदर। सो नाउ ये तो हो गया सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। देन वी विल स्टार्ट विद एक्चुअल एमएसपी। सो द फर्स्ट थिंग जो आप कोई भी शेड्यूल बनाने से पहले करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट कैलेंडर। यू हैव टू सेट अप योर प्रोजेक्ट कैलेंडर एज पर योर company's calendar, which is the first and foremost part of setting up any software or any schedule in MSP. So in project calendar, what we will do is we will change the working time, setting work weeks, entering holidays, preparation of complete project calendar. It sounds very easy, but it is quite a tough job. कोई लेबर आपके 8 आवर्स काम करते हैं, कोई लेबर 6 आवर्स अ डे काम करते हैं, कोई लेबर संडे को भी काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर लेबर नाइट में करते हैं, बट दूसरी लेबर गैंग नाइट में काम नहीं करती है। तो वो सारा चीजें शेड्यूलिंग में कंसिडर होती है। कोई लेबर गैंग 5 डेज के हॉलीडे पे जा रहा है, दुर्गा पूजा पे, कोई दिवाली पे जा रहा है, कोई ईद पे हॉलीडे पे जा रहा है, कोई न्यू ईयर पे जा रहा है, वो सारा चीजें प्रोजेक्ट कैलेंडर में मैनेज होता है। प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होती है, उसके हिसाब से हम शेड्यूल बनाते हैं। हम शेड्यूल में वो सब कुछ कंसिडर करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ एनी शेड्यूल इज प्रोजेक्ट कैलेंडर, दैट वी विल लर्न। देन कैलेंडर हमारा सेटअप हो गया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वी विल क्रिएट वेरियस टास्क, दैट इज एक्टिविटीज। जो हम कंस्ट्रक्शन में जिनको एक्टिविटीज बोलते हैं, एमएसपी में भी कॉल देम एज टास्क। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंटर करेंगे एमएसपी में। देन वी विल लर्न टू क्रिएट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम सारा इनपुट करेंगे। ये सारे रिसोर्सेज में एक एक करके हम लोग कॉस्ट इनपुट करेंगे। नाउ इन एमएसपी कॉस्टिंग भी 4-5 तरीके का होता है, वो सारा कॉस्ट हम लोग रिसोर्सेज में एंटर करेंगे। देन ये सारा रिसोर्सेज का लिस्ट और उसका कॉस्टिंग ऐड करने के बाद हम कौन से रिसोर्स को, कौन से टास्क को असाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक रिसोर्स बना लिया कि आई हैव अ रिसोर्स जेसीबी एट माय साइट, that JCB is going to cost me 800 rupees an hour. It's just an example.
अब वो जेसीबी कौन सा एक्टिविटी पे कितने टाइम के लिए असाइन होगा, कैसे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होगा, वो सारी थिंग्स विल कम अंडर असाइनिंग रिसोर्सेज टू वेरियस टास्क। वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथनिंग सीखेंगे। देन सेटिंग अप प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एंड फाइनलाइजिंग अ शेड्यूल। ये सारा चीजें करने के बाद, माइलस्टोन सेटअप करने के बाद एक शेड्यूल फाइनल होता है। शेड्यूल आपके एंड से बन जाने के बाद यू गो टू योर सीनियर्स, दे रिव्यू द शेड्यूल। शेड्यूलिंग इज अ आइटरेटिव प्रोसेस। बेसिकली आइटरेटिव मींस जिसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते जाना पड़ता है आपको, जो प्रोसेस आपको रिपीटेटिव करते जाना है। एक बार में आपका बनाया हुआ शेड्यूल विल नेवर बी अप्रूव्ड फ्रॉम आइदर योर मैनेजमेंट और क्लाइंट्स मैनेजमेंट। उस पे बहुत सारे इटरेशंस होंगे, बहुत सारे चेंजेस करवाएंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग आपको अलग अलग टेक्निकल रीजन देके, फाइनेंशियल रीजन देके, लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट देके, बहुत सारी चीजें करके बाद में एक शेड्यूल फाइनल होगा। वंस द शेड्यूल इज फाइनल, हम प्रोजेक्ट का बेसलाइन सेटअप करते हैं। यहां तक हमारा शेड्यूल बनाने का काम कंप्लीट हो जाता है। अभी आपने सिर्फ शेड्यूल बनाया है। अब जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, व्हेन यू कीप ऑन वर्किंग टू दैट इन दैट प्रोजेक्ट, आप उस शेड्यूल को ऑन अ डेली लेवल या हर 2 दिन में, 5 दिन में उस शेड्यूल को आप ट्रैक करते रहते हो कि यू हैव प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 5 years। पर आप आज से 15 दिन बाद ही उसको ट्रैक करके बता सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट ये जो 5 years में कंप्लीट करने वाला था, ये मैं अब 5 years में कर पाऊंगा या 5 years 15 days में कर पाऊंगा। कितना, हाउ मच माई प्रोजेक्ट इज गेटिंग डिलेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, हाउ मच इट इज गेटिंग डिलेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, ऑल दीज थिंग्स आप स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट एंड डोंट स्विच ऑन योर वीडियो। हर चीज का आपको लास्ट में चांस मिलेगा। सो ये प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया हमने एक शेड्यूल। अब बेसिकली WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो हम पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे वर्क पैकेजेस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग इंजीनियर्स को असाइन करते हैं, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। दैट वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर WBS इन MSP। देन पूरा कॉस्टिंग वाला पार्ट। अब कॉस्टिंग वाले पार्ट में क्या क्या चीजें डिटेल में होती हैं, असाइनिंग कॉस्ट टू रिसोर्सेस, कॉस्ट रेट टेबल, कॉस्ट रिसोर्सेस, प्रोजेक्ट कॉस्ट, बजट कॉस्ट। अब ये कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आई विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। सो स्टार्टिंग के 3 4 फ्लोर्स में अगर आपका फ्लोरिंग वाला 50 रुपीज स्क्वायर फीट आपसे चार्ज ले रहा है टाइल्स लगाने के लिए, उसके 5 फ्लोर पे हो सकता है वो 60 रुपीज लेगा। उससे 5 फ्लोर ऊपर पे वो हो सकता है 65 रुपीज लेगा। टेरिस और ऊपर टॉप के फ्लोर्स पे हो सकता है वो 75 रुपीज लेगा। सो एक ही बंदे के फ्लोर वाइज रेट चेंज होते हैं। वैसे ही अगर एक हाईवे का प्रोजेक्ट होता है, टनल का प्रोजेक्ट होता है, तो टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से एक्सकेवेशन के चार्जेस चेंज होते हैं। जितना लीड टाइम होता है, मटेरियल शिफ्टिंग का टाइम होता है, उससे मटेरियल के सॉरी लेबर के चार्जेस चेंज होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इनपुट करनी पड़ती है एमएसपी में। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बेस रेट डाल के छोड़ दिया उससे बजट बन जाएगा। सो कॉस्टिंग एमएसपी में करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड कॉस्टिंग इन रियल लाइफ इज ऑल्सो, बजटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जो हम लोग एक्सेल में प्रोजेक्ट का बजट बनाते हैं, वो सारा कॉस्टिंग हम लोग एमएसपी में इनपुट करेंगे। देन मेरा शेड्यूल रेडी हो जाने के बाद, व्हेन माय प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट्स एट साइट, देन कम्स द प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पार्ट। ट्रैकिंग पार्ट में क्या क्या होता है, बेसिक्स ऑफ ट्रैकिंग, automatically updating the project, manually updating a project by using work hour data, manually updating project using percentage work completion data, dealing with delaying problems. A project tracking, there are two parts of project tracking. First is basically you track a project, कितना आपका प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, देन व्हाट यू डू टू टेक ओवर, टू कम ओवर दैट डिले। फॉर एग्जांपल 5 साल का प्रोजेक्ट आपका 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स अभी से डिले हो चुका है, यू नो दैट। सो आप उस डिले का क्या कर रहे हो, दैट कम्स विद डीलिंग विद डिलेइंग प्रॉब्लम्स, जो एक मैनेजरियल पार्ट होता है, विच आई कवर इन दिस। आपको सिर्फ एमएसपी चलाना आता है, उससे कोई आपको प्लानर नहीं बना देगा। प्लानर होने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। प्लानर होने के लिए आपको ये सूझ समझ होनी चाहिए उस चीज की कि मैं कितना, मेरा प्रोजेक्ट कब डिले चल रहा है, तो मुझे उससे किससे कांटेक्ट करना है, मुझे अपने हायर टीम को क्या कम्युनिकेट करना है, मुझे अपने से अंडर वाले इंजीनियर्स को कैसे कंट्रोल करना है, पूरी प्रोजेक्ट की टीम कंट्रोल करना आना चाहिए प्लानर को। इट्स जस्ट नॉट अबाउट एमएसपी। So how you will deal with that dealing problems, that will go through that project tracking. देन अर्नड वैल्यू एनालिसिस, जो सबसे एडवांस पार्ट आता है एमएसपी का। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े हुए लोगों को भी नहीं आता है अर्नड वैल्यू एनालिसिस, बट एज इट इज अ पार्ट ऑफ एमएसपी, सो व्हाट आई डू इज आई टेक 2 सेशंस ऑन अर्नड वैल्यू एनालिसिस। एक अर्नड वैल्यू एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, आई टेक one complete technical session of earned value analysis, उसके बाद I do that in the second session earned value analysis को MSP पे करके मैं पूरा बताता हूँ। So those both the two things we will cover. What is earned value analysis? Basically earned value analysis using a percentage complete value and earned value analysis using physical percentage complete value. दो पार्ट होते हैं earned value analysis के, all the two parts will cover in this session. ये हो जाने के बाद
ये 15 टॉपिक्स हमारे आई थिंक 17 या 18 19 समथिंग सेशंस में कंप्लीट होंगे। यहाँ तक अगर आपको पूरा एमएसपी आ गया, कॉस्टिंग, बजटिंग, रिसोर्सेज, डब्ल्यूबीएस, ट्रैकिंग, अर्न्ड वैल्यू, ये सारा कैलेंडर, ये सारा चीजें अगर आपको आ गया, तो बेसिकली आपका 90.95% एमएसपी आपको आ चुका है। उसके बाद जो हम सीखेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रूथ्स हम लोग देखेंगे एमएसपी में, जैसे कि कस्टमाइजेशंस। मैं आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस बताऊंगा एमएसपी में, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। बेसिकली एक प्लानर का काम सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं होता है, आपको 10 काम और बोले जाएंगे। सो कैसे आप उस सॉफ्टवेयर पे इजीली वर्क करें, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किससे आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी छोटी छोटी कस्टमाइजेशंस, जिससे एक सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस और यूजर का उसको यूज करने का एक्सपीरियंस बेटर होता है। वो सारा चीजें हम लोग कस्टमाइजेशन इन एमएसपी में देखेंगे। देन सबसे लास्ट पार्ट हमारे पूरे सेशन का, रिपोर्ट्स। जैसे हमारे एक्सेल में बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, आपको पता है, इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वी जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स। सो इन द सेम वे, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हम बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। इन द सेम वे एमएसपी में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ऑल दोज रिपोर्ट्स I'll take you through preparation of various reports generated in MSP for sharing with project manager and project team. इसमें वर्क रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, शेड्यूल रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, कॉस्टिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस वर्क्स रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, डिले कितना हो रहा है, हर टाइप का रिपोर्ट बनता है एमएसपी में और ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो सारा रिपोर्टिंग वाला पार्ट हम लोग सीखेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपका बेसिकली काम एट द एंड रिपोर्टिंग ही होता है। जो चीज हमारे लेवल पे मैनेज नहीं हो रही है, वो हमें हमारे सीनियर को बेस्ट तरीके से कन्वे करनी है। सो रिपोर्ट्स बनाना ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए, तो रिपोर्टिंग वाला पार्ट हम कवर करेंगे। अब जो भी हमारा ये 21 डेज के सेशंस हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी थ्योरेटिकली डिस्कस किया, ये हम कुछ भी थ्योरेटिकली नहीं करेंगे। ये सारा चीजें मैंने प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकली बना रखा है, बट उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली ऑब्वियसली एमएसपी में करते रहेंगे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की क्लास है। तो दो टाइप के शेड्यूल हम लोग पूरे सेशन में बनाएंगे। बेसिकली इंडिया में क्या होता है, दो टाइप के शेड्यूल होते हैं। 60 to 70% कंपनीज आपको ये बोलेंगी कि मुझे एक बेसिक शेड्यूल बना के दे दो एमएसपी में। उसका मीनिंग ये होता है कि आपने सारी एक्टिविटीज डाल दी, टाइम डाल दिया, प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट आ गया, एंड डेट आ गया, माइलस्टोन्स आ गए, बेसलाइन आ गए, बस। उसमें रिसोर्सेस, कॉस्टिंग, पैसे वाली कुछ भी बात नहीं होती। 50 to 60% कंपनीज आज भी सिर्फ एक टाइम रिलेटेड शेड्यूल मांगती हैं आपसे। तो हम दोनों टाइप के शेड्यूल एमएसपी में बनाएंगे। एक शेड्यूल हमारा रहेगा ओनली टाइम बेस्ड बेसिक शेड्यूल, जिससे आपकी 50-60% कंपनीज कवर हो जाएंगी, और एक हमारा एडवांस लेवल शेड्यूल जिसमें रिसोर्सेज आ गया, कॉस्टिंग आ गया, कॉस्टिंग के बाद अर्न्ड वैल्यू आ गया, ये सारा चीजें जो कॉस्टिंग, पैसे, रिसोर्सेज वाला बात है, ये सब उसमें आ गया। दोनों टाइप के शेड्यूल हम लोग एमएसपी पे बनाएंगे। सो टास्क विल ऑनर देयर कंस्ट्रेंट डेट्स एंड न्यू टास्क आर एफर्ट ड्रिवन। इसका मीनिंग आपको क्लास के साथ समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। एंड न्यू टास्क आर नॉट एफर्ट ड्रिवन। ये दोनों चीजों का हम लोग दो टाइप के शेड्यूल बनाएंगे। सो बेसिकली एमएसपी प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैं ये चीज पैरेलली पॉसिबल नहीं है कि मैं पैरेलली हाईवे के प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना रहा हूं। मैं कोई बोले कि सर मैं तो मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करता हूं, मेट्रो का शेड्यूल बना के दिखाओ। मैं बोलूं कि मैंने पूरे लाइफ रियल स्टेट में ही काम किया है, मैं रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं। पॉइंट ये है कि हमें एमएसपी चलाना सीखना है। अब आपको जिस भी चीज का टेक्निकल नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आप मेट्रो वाले हैं, आप हाईवे वाले हैं, आप रियल स्टेट, कमर्शियल, आप जिस चीज के में आप एम्प्लॉयड हैं, या जिस चीज में आप जिस अगर आप स्टूडेंट है, तो आप जिस भी चीज को परस्यू करना चाहते हैं, उसके टेक्निकल नॉलेज के साथ आप उसका शेड्यूल बना सकते हैं। मुझे आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाना यहाँ पे मेरा पार्ट नहीं है, माय पार्ट इज आपको एमएसपी सिखाना। सो बेसिकली मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। आपको एमएसपी पूरा सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, आप उसको हाईवे पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मेट्रो पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक हाईवे प्रोजेक्ट मेरे साथ पैरेलली घर पे बैठ के बनाएंगे, उसमें मुझसे डाउट्स पूछेंगे तो मैं डाउट्स भी क्लियर करूंगा। बट आप उसमें मुझसे अगर ये पूछेंगे कि सर ये कॉलम पहले कास्ट होना चाहिए कि आगे वाला पहले कास्ट होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड इन हाईवे, तो मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग वाली चीजें नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, एमएसपी में आपको कोई भी डाउट हो, फिर वेदर यू डिजाइन अ शेड्यूल फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, द थर्मल पावर प्लांट, एक 2 कमरे का घर, या 100 फ्लोर्स की रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हाई राइज, आप कुछ भी चीज का शेड्यूल बनाए एमएसपी रिलेटेड, ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। अब लास्ट के 1-2 सेशंस के पहले आई आस्क एवरीवन टू प्रिपेयर अ स्मॉल असाइनमेंट। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट करे, उस पे आपका एक पूरा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए मैं बोलूंगा आपको। एज सुन एज यू गाइस सबमिट एन असाइनमेंट, आपका आपको सर्टिफिकेट कोर्स का मिल जाएगा। एन असाइनमेंट इटसेल्फ शोज कि हाँ, हमने जितना पढ़ा है हमें वो समझ में आया है। नाउ सबसे लास्ट का जो सेशन होता है, उसमें मैं आई कवर ऑल दी डाउट्स। सारे डाउट्स के साथ साथ आई कवर डिफरेंसेस बिटवीन एमएसपी एंड प्राइमावेरा,
एंड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमएसपी। ये मैं इसीलिए डिस्कस करता हूँ, द रीजन बीइंग कि जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट हम हमारे रिज्यूमे में फ्लॉन्ट करने वाले हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू फ्लॉन्ट एनीथिंग इन अवर रिज्यूमे, ऑटोमेटिकली हमारे इंटरव्यू पे उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो सम बेसिक 30-40 questions which I think that you need to learn, that you should know of to answer in an interview, वो मैं लास्ट के सेशन में कवर करता हूँ। सम डिफरेंसेस इन एमएसपी प्राइमवेरा एंड सम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमएसपी। ये हमारा पूरा प्लान रहेगा रिलेटेड टू दी पूरे 21 डेज के कोर्स का। अब हम बहुत ही बेसिक कुछ कुछ चीजें आज देखेंगे एमएसपी का आउट ऑफ दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट? Microsoft Project is a project management software product which is developed and sold by Microsoft. It is designed to assist a project manager in developing a schedule. First, you need to develop a schedule, assign resources to those tasks, track the progress, and managing the budget and analyzing the workloads. To understand Microsoft Project, it is very important to learn a few basic project planning principles. कुछ बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग के प्रिंसिपल्स समझना प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है, इट इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ एन एमएसपी स्क्रीन इटसेल्फ। ऐसा दिखता है एमएसपी का स्क्रीन। टास्क के नेम्स हैं, टास्क मोड्स हैं, उनके नंबर हैं, देयर ड्यूरेशन, देयर स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ये सब होता है। और यहाँ पैरेलली एक गैंट चार्ट बनते जाता है आपका एक्टिविटीज का। A small history of MSP, जो फर्स्ट वर्जन है एमएसपी का, इट वाज रिलीज्ड इन 1984 में आया था बाय अ स्मॉल कंपनी वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। माइक्रोसॉफ्ट ने उसके सारे राइट्स बाय करके अपना एमएसपी लॉन्च किया। हमारे विंडोज के लिए द फर्स्ट वर्जन केम इन 1990। उसके बाद से बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। 19 के बाद भी आई थिंक 21 भी वर्जन आ चुका है। बट द पॉइंट इज, हाँ, ये आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। जो भी लोग एमएसपी लर्न कर रहे हैं, सो बेसिकली आई विल टेल यू कि जैसे प्राइमावेरा में और जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है कि दे गिव अ फ्री ट्रायल फॉर स्टूडेंट्स। ऑटोकैड भी आपको 1 महीने का ट्रायल देता है, प्राइमावेरा आपको 1 महीने का ट्रायल देता है। बट इन एमएसपी देयर इज नो फ्री ट्रायल अवेलेबल फॉर एनीवन। आपको यूट्यूब पे लिंक्स पे जाके, आपको टॉरेंट से, आपको यूट्यूब पे आप डालेंगे डाउनलोड एमएसपी, तो आपको बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। वहां से यू विल हैव टू डाउनलोड द अनऑफिशियल वर्जन। ऑफिशियल वर्जन आप परचेस करना चाहें फॉर योर कंपनी और योरसेल्फ, तो यूर वेल एंड गुड, वो आप कर सकते हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि कोई भी फ्री ट्रायल स्टूडेंट्स के लिए एमएसपी का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। सो द लेटेस्ट वर्जन इज आई थिंक नाउ 21। सो अगर आपका कंप्यूटर पुराना है या लैपटॉप आपका हैंग होता है, पुराना लैपटॉप है, व्हाटएवर, आप 2016 भी अगर चलाएंगे तो 2016 एमएसपी वर्जन के बाद से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है एमएसपी में। इवन इफ यू डाउनलोड एमएसपी 2016 वर्जन, यू आर गुड टू गो। मैं जो भी पढ़ाऊंगा 19 वर्जन में, वो पूरा एज इट इज रहेगा 2016 में। इफ यू डाउनलोड अ प्रीवियस वर्जन, 16 के भी पहले का वर्जन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। 16 या 16 से लेटेस्ट आप जो भी डाउनलोड करेंगे, आई एम ओके विद दैट। So there are a few things that I think we should know to start with a software. Basically, project planning क्या होता है, activity method statement, activity sequencing, scheduling, tracking and monitoring and control. ये बहुत ही confusing terms है. Let's go on to it one by one. Basically, project क्या होता है? Project is a complete process of carrying out work to achieve a predestined result. Construction projects की basically there are several characteristics. There is a well-defined objective behind every project. कुछ objective है आपका, आप जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, पैसा कमाना है, आपको इतना % प्रॉफिट चाहिए, या आपको इतना मार्केट में रेपुटेशन बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट देयर हैज टू बी अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो आपको अचीव करना है, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको अचीव करने में आपकी कंप्लीट हेल्प करते रहे। complex and unique effort, every project is a complex and unique effort in itself. Every project has a defined time scale, cost and relevance. आप अगर एक डेवलपर के साइड से समझेंगे, मेरा बजट 1 करोड़ है, 10 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, जो भी है, मैंने एक बजट बनाया है, तब मैंने वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चालू करा है। अगर मेरी प्रोजेक्ट टीम, जिनको मैं इतना सैलरी दे रहा हूँ, वो 50 करोड़ के प्रोजेक्ट को मॉनिटर ही नहीं कर पा रही है, ओवर बजट कर करके 60, 70, 80 पे ले गई, तो फिर मतलब क्या हुआ मुझे इतना स्टाफ रखने का? एक तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैंने कह दिया कि 2 साल में प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो आपको 2 साल में करना है। अगर वो टेक्निकली 2 साल में करना पॉसिबल नहीं है, तो यू कम टू मी विथ अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। बट मैं अगर पैसा लगा रहा हूं आपके चीज में, द ओनली इशू विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज, हमारा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि जब आप अपने जेब से 5 करोड़ खर्च करोगे, वो 5 करोड़ स्पेंड करने के बाद आपको उस पर 20, 30, 40, 50 लैक्स प्रॉफिट मिलेगा। इट्स नॉट लाइक आईटी इंडस्ट्री की मैंने एक ऐप बना दिया और
मिनिमल इन्वेस्टमेंट में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लोग मुझे फंडिंग करने आ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। कंस्ट्रक्शन में जेब से पैसा लगता है, अगर किसी का पैसा लग रहा है, किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है, सो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हैज टू मॉनिटर ऑल दैट। उसके लिए ये प्लानर्स आए हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स आए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आए हैं टू मॉनिटर टाइम एंड मनी बेसिकली। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, अब हर टीम का एक अपना अलग नॉलेज है। कोई सिविल इंजीनियर्स हैं, कोई फिनिशिंग वाले हैं, कोई हमारे पीएमवी, सम पीपल आर फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, देयर आर many things that are going to be different in everyone। कोई टावर क्रेन ऑपरेटर्स हैं, कोई सेफ्टी वाला है, कोई क्वालिटी वाला है, हर किसी का नॉलेज अलग है। तो उन सारे लोगों को सेम पेज पे लाकर मुझे मेरे हिसाब से मैनेज करवाना है। दैट्स द वर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हमेशा बैठा होता है प्लानर, जो एमएसपी और ये सारे सॉफ्टवेयर पे काम करता है। अब एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। मुझसे यहाँ पे नीचे का मिस आउट हो गया। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन फेज, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में होता है। सेकंड मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि अब आप प्रोजेक्ट पे अपनी मशीनरी, लेबर, ये सारा चीज एक एक करके मोबिलाइज कर रहे हो। थर्ड होता है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। और हमारा चौथा होता है द फाइनल वन, जिसको हम बोलते हैं डीमोबिलाइजेशन फेज। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, मैं अपना सारा मशीनरी एंड बचा हुआ स्क्रैप सब लेके प्रोजेक्ट क्लीन अप करके वहां से निकल जाऊंगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर। दैट इज डीमोबिलाइजेशन फेज। अब डेफिनेशंस से बेटर आई गिव यू टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टेटिंग हाउ टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। ये जो सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं एमएसपी में, दोज ऑल कम्स अंडर प्लानिंग। हर चीज प्लानिंग के अंडर आ गया। प्लानिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बट ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट इज एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट। एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट क्या होता है और ये आपको क्यों आना चाहिए प्लानिंग करने के पहले? देखिए, हर कंपनी में हर चीज को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी होती है। किसी कंपनी में वर्क मेथड स्टेटमेंट क्वालिटी वाला बनाता है, किसी में प्लानिंग वाला बनाता है। पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्रूफिंग, मुझे वाटर प्रूफिंग करना है, मुझे फर्स्ट कोट करना है वाटर प्रूफिंग का। उसके बाद 3 days आई हैव टू डू पॉन्डिंग, देन आई विल डू केमिकल कोट, देन आई विल डू 3 days पॉन्डिंग टेस्ट। उसके बाद मैं लास्ट में एक कोट और करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल डू 7 days पॉन्डिंग। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ अगर ये जैसे वाटर प्रूफिंग हो गया, वैसे ही हर एक्टिविटी को जब आप ब्रेकअप करेंगे, जैसे वाटर प्रूफिंग एक एक्टिविटी हो गई, अब हाउ विल यू कैलकुलेट वाटर प्रूफिंग का ड्यूरेशन? वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी में वाटर प्रूफिंग करना है, उसके लिए कितना लेबर रिक्वायर्ड है, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। और बेसिकली कुछ टाइमिंग आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे वाटर प्रूफिंग करने के बाद 7 days तक पानी भर के चेक करना है, क्लाइंट ने बोला है तो मुझे चेक करना है। अगर मुझे ये चीज स्टार्टिंग में पता ही नहीं थी, मुझे एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट नहीं पता था वाटर प्रूफिंग का, मैंने पूरे शेड्यूल में वाटर प्रूफिंग को 3 days 2 days 3 days 2 days डाल के रखा है। बाद में पता चला कि वाटर प्रूफिंग करने में 10 days लग रहे हैं। क्यों? 3 दिन करने में, 7 दिन क्लाइंट ने बोल दिया पॉन्डिंग करके रखना है मुझे। तो अब मेरा तो पूरा शेड्यूल कितने डेज से डिले हो जाएगा? अगर मेरी 20 फ्लोर की बिल्डिंग में हर फ्लोर पे मैं 7 days पॉन्डिंग करूंगा, तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट तो 20 30 40 डेज डिले हो जाएगा। सो मुझे प्लानिंग करने आने के पहले हर चीज का एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि पहले मैं शटरिंग करूंगा, फिर शटरिंग की एक दिन में चेकिंग होगी, उस पर मैं बॉटम का रिइंफोर्समेंट बांधूंगा, फिर उसके बीच में आई डू इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग, पीवीसी के स्लीव्स डलेंगी, उसके बाद टॉप का रिइंफोर्समेंट बनेगा, फिर क्लाइंट का इंजीनियर, हमारा इंजीनियर एक दिन एक एक चीज चेक करेगा, उसके बाद नाइट में कंक्रीटिंग स्टार्ट होगा। हर चीज का आपको स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी पता होना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी चीज हो कंक्रीटिंग, या एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जैसे वाटर प्रूफिंग या टाइल्स लगाना। जब तक आपको हर एक्टिविटी का डिटेल में टेक्निकल नहीं पता है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते। नहीं तो लोग सोचेंगे कि यार प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, बट प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा है। आप किसी को बताने लायक ही नहीं रह जाओगे कि मैंने तो सर सॉरी वाटर प्रूफिंग के लिए 3 दिन पकड़े थे, अब तो सर वाटर प्रूफिंग के लिए 10 दिन लग रहे हैं हर फ्लोर पे। मतलब वो कितना बड़ा प्लानिंग ब्लंडर हो गया कि आपको प्लानिंग करते टाइम पता ही नहीं था कि 7 days पॉन्डिंग करने के लिए बोलेगा क्लाइंट। सो हर चीज का एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, आपको अपने सीनियर्स से पूछना है, क्लाइंट से पूछना है। यू हैव टू कीप एवरीवन इन लूप जब आप प्रोजेक्ट का शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हो सकता है क्लाइंट से यू कैन गेट सम अदर इनसाइट्स जो आपको नहीं पता थी। जो भी चीज प्रोजेक्ट की इसलिए बोला जाता है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो क्लियर नहीं है वो हम क्लियर कर लें, सो दैट हमें हर एक्टिविटी का इन डेप्थ डिटेल पता चल जाए। नाउ सेकंड थिंग इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। अब मुझे हर एक्टिविटी का ब्रेकअप पता चल गया, अब मुझे सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। ठीक है, हर एक्टिविटी को सेल्फ को मैंने डिटेल में जान लिया, हर एक्टिविटी के ऊपर नीचे कौन सी क्या क्या एक्टिविटी होनी है वो मैंने जान ली।
वो सारी एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग मुझे पता है, एक्टिविटी का टेक्निकल नॉलेज मुझे पता है, तो मैं उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट और ड्यूरेशन जैसे ही डालूंगा इस लिस्ट में, मेरा प्रोजेक्ट का शेड्यूल बन जाएगा. सो शेड्यूलिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लिस्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज. पहले हर एक्टिविटी का डिटेल देखा, हर एक्टिविटी का सीक्वेंस समझा, उस सीक्वेंस में स्टार्ट डेट, एंड डेट और ड्यूरेशन डाला, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट का शेड्यूल फाइनल हो जाएगा. सो scheduling in project management is listing of activities, deliverables, milestones within a project. A schedule also usually includes a planned start date, finish date, duration, and resources assigned to each activity. Effective project scheduling is a critical component of successful time management. ठीक है. अब प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है? अब मेरा ये शेड्यूल फाइनल हो गया, तो हर दिन मुझे हर 3-4 दिन में उस शेड्यूल को ट्रैक करते जाना है. मुझे देखना है कि क्यों मेरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, कहाँ डिले हो रहा है, सब कुछ टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे इश्यूज को मुझे आइडेंटिफाई करना है और आगे का डिले ओवर बजट होने से रोकना है. सबसे लास्ट स्टेप होती है प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. आपको कितना दिन डिले हो रहा है वो पता चल गया, आपको टेक्निकल नॉलेज पता चल गया कि इस एक्टिविटी की वजह से डिले हो रहा है, या लेबर कम आ रही है, जितना लेबर मैंने बोला था उतना वो कॉन्ट्रैक्टर लगा नहीं पा रहा, उसके वजह से डिले हो रहा है. वो सारी चीजें जब आपको पता चल गई, उसके बाद आपको उसको कंट्रोल करना है. कैसे आप लेबर बढ़ाएंगे? आप लेबर नहीं बढ़ा सकते तो आप ओवर टाइम काम करवाओ, आप ओवर टाइम नहीं करवा सकते तो दूसरे रिसोर्सेज बढ़ाओ. कैसे करके मुझे ये डिले को ओवरकम करना है? अगर मुझे डिले को ओवरकम करना नहीं आता है तो मैं कितना ही प्लान बना लूं, कितना ही ट्रैकिंग कर लूं, उसमें लिस्ट में जुड़ता जाएगा 20 डेज डिले, एक महीने बाद जुड़ जाएगा 30 डेज डिले, फिर एक महीने बाद जुड़ जाएगा 40 डेज डिले, बट उस पर मैं एक्शन ही नहीं ले पा रहा हूं. ना मेरी मैनेजमेंट कुछ एक्शन ले पा रही है, ना हम मैनेजमेंट, ना मैं एक्शन ले पा रहा हूँ, ना मेरी सीनियर मैनेजमेंट एक्शन ले पा रही है. तो मुझे पता भी लगा कि मैंने क्या कर लिया, मुझे कितना डिले हो रहा है. तो टेक्निकली उस डिले को कैसे ओवरकम करना है, शेड्यूल में कौन से एक्टिविटीज को, कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल है, कौन सी नहीं है, वो सारी चीजें आती है मेरी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में. एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन, शेड्यूल डेवलपमेंट एंड शेड्यूल कंट्रोल. ये 5 स्टेप्स होते हैं पूरे शेड्यूल का प्लानिंग और ट्रैकिंग के. नाउ वी फाइनली एंटर इनटू एमएसपी. अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे ये सारी प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कर रहे थे. नाउ फ्रॉम हियर ऑन वी आर स्टार्टिंग विद एमएसपी. सो बेसिकली जब आप एक्टिविटीज एमएसपी में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल, एक्सेल में आप एक के नीचे एक डालते जाते हैं डेटा, तो एक के नीचे एक डेटा एक्सेल लेता जाता है. एक्सेल में कुछ भी टेक्निकल वैसा नहीं होता. एमएसपी में आप दो एक्टिविटीज को जो आपने ऊपर नीचे लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिखा कॉलम रीइंफोर्समेंट, उसके नीचे एक एक्टिविटी लिख दी कॉलम शटरिंग, उसके नीचे एक एक्टिविटी लिख दी कॉलम कंक्रीटिंग. अब मैं ये एमएसपी को बताऊं कैसे कि पहले कॉलम में सरिया लगेगा, रीइंफोर्समेंट कंप्लीट होगा, उसके अगले दिन मैं कॉलम में शटर लगाऊंगा, उसी दिन मैं रात में कंक्रीट करूंगा या अगले दिन कंक्रीटिंग करूंगा. सीक्वेंस कैसे समझाऊं एमएसपी को? एक्सेल में तो मैं सिर्फ लिख के छोड़ देता हूं. सो एमएसपी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टास्क लिंक्स दैट वी बेसिकली एंटर. सो वो क्या होते हैं 4 टाइप के टास्क लिंक्स? एक होता है फिनिश टू स्टार्ट, एक होता है स्टार्ट टू स्टार्ट, वन इज फिनिश टू फिनिश, एंड फर्स्ट वाले का एकदम अपोजिट होता है स्टार्ट टू फिनिश. ये 4 तरीके के लिंक्स होते हैं जिन लिंक्स से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एमएसपी में लिंक कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज फिनिश टू स्टार्ट. बेसिकली दो एक्टिविटीज हैं, अगर ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी, तो ये टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, हर एक्टिविटी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो ए एक्टिविटी है, ये जो है ये उसका लेफ्ट पार्ट है, ये जो है ये उसका राइट पार्ट है. तो राइट ये जो होता है ये स्टार्टिंग होती है कोई भी एक्टिविटी की, ये जो होता है ये फिनिश होता है कोई भी एक्टिविटी का. इन द सेम वे बी का ये स्टार्टिंग है, ये उसका फिनिश है. अगर इसका लास्ट वाला पोर्शन यानी एंड वाला पोर्शन इसके फिनिश वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, दिस फिनिश दिस स्टार्ट से लिंक्ड है, तो ये हो गया फिनिश टू स्टार्ट. ठीक है. फिनिश टू स्टार्ट का सिंपल मीनिंग हिंदी में ये होता है, जब पहली एक्टिविटी खत्म होगी तभी दूसरी एक्टिविटी चालू होगी. दिस इज नोन एज फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप विच इज नॉर्मल. कॉलम में सरिया लगेगा, उसके बाद ही कॉलम में आप शटर लगा सकते हो, फिर कॉलम में शटर लगेगा, उसके बाद ही आप कॉलम में कंक्रीट कर सकते हो. बिना शटरिंग करे उसमें आप कंक्रीट नहीं डाल सकते. सो दीज आर नॉर्मल फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप. दूसरा टाइप की रिलेशनशिप होती है स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, जब दोनों एक्टिविटीज का ये स्टार्ट वाला पोर्शन एक दूसरे से लिंक्ड होता है. लाइक इसमें स्टार्ट इसके फिनिश से लिंक्ड है, इसका स्टार्ट इसके स्टार्ट से लिंक्ड है. दोनों एक्टिविटीज का स्टार्ट टू स्टार्ट पोर्शन लिंक्ड है, उसे हम कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट. मतलब ये दोनों एक्टिविटीज साथ में स्टार्ट होंगी, नो मैटर वो कभी भी खत्म हो, आगे पीछे खत्म हो सकती है, बट दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट साथ में होंगी.
जैसे मैं दो कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो दोनों कॉलम के लिए एक एक अलग फिटर है मेरे पास, तो दोनों कॉलम में सरिया बनना साथ में स्टार्ट होगा। खत्म कभी भी हो वो एक अलग बात है, वो मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। स्टार्ट टू स्टार्ट का मीनिंग है कि दोनों का स्टार्ट साथ में होगा, ठीक है। फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश लिंक का मतलब होता है कि दोनों की ये एंड वाली पुछंडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट सिंपली मीन्स कि ये दोनों एक्टिविटी कभी भी स्टार्ट हुई हो सकता है वन एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन 15th October and one activity started today, that is 18th October. There is possibility, but both the activities are going to get over by uh, लाइक 21st अक्टूबर। डेडलाइन दोनों एक्टिविटी की 21st अक्टूबर है, सो इट इज प्रीटी क्लियर कि दोनों एक्टिविटी 21st अक्टूबर को खत्म होंगी, या तो उसको हम बोलेंगे फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता कब स्टार्ट हुई, खत्म मुझे दोनों एक ही डेट पे करनी, दैट इज माई नॉर्मल फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। अब स्टार्ट टू फिनिश इसका पूरा अपोजिट है फिनिश टू स्टार्ट का। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये था कि पहली एक्टिविटी ए एक्टिविटी खत्म होगी तब बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। स्टार्ट टू फिनिश उसका पूरा अपोजिट है कि ए एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब उसके आगे वाली बी एक्टिविटी फिनिश होगी। ये एकदम अपोजिट है फर्स्ट का। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रियल लाइफ में बहुत कम है। अगर हमारे शेड्यूल बनाते टाइम को इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे, सो दैट टाइम वी विल डेफिनेटली डिस्कस, बट ये फर्स्ट वाले का एकदम अपोजिट है द पॉइंट बी। ऐसे चार तरीके के लिंक्स होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, जो जिसको हम एमएसपी में यूज करते हैं। अब कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो लिंक के अलावा हमें समझ में आना चाहिए, ये देख के हम लोग सेशन स्टॉप करेंगे। स्टॉप इन द सेंस विल गो फॉर दी डाउट्स। प्रीडेसेसर एक्टिविटी क्या होता है, सक्सेसर एक्टिविटी क्या होता है। ऑब्वियसली जो ये नॉर्मल दो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो पहले होता है दैट इज जो इंग्लिश में हम बचपन में पढ़ते थे प्रीडेसेसर सक्सेसर, वही इंग्लिश के टर्म से ही है। जो एक्टिविटी फर्स्ट है हमारी वो उसको वो प्रीडेसेसर कहलाएगी, जो सेकंड है जो बाद में हो रही है वो सक्सेसर कहलाएगी। इट इज नॉर्मल फिनिश, मतलब नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से प्रीडेसेसर सक्सेसर। अब लैग और लीड क्या होता है, देखिए दो एक्टिविटीज के बीच में कभी गैप इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसका कोई टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, वो गैप इंट्रोड्यूस करने का कोई मैनेजेरियल रीजन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम का सरिया बांधा, कॉलम का सरिया बांध के कल एक दिन मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि कल आएंगे इंजीनियर्स चेक करने, उसके अगले दिन मैं शटरिंग कर सकता हूँ। एक देयर इज अ वन डे गैप जो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। अब वो गैप टेक्निकल रीजन से हो, चाहे फाइनेंशियल रीजन से हो, चाहे मैनेजरियल रीजन से हो, रीजन से मतलब नहीं, आपको दो एक्टिविटीज के बीच में गैप देना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक स्लैब कास्ट हो गया, फर्स्ट स्लैब कास्ट होने के बाद मैं क्यूरिंग कर रहा हूँ, मैं 2 दिन क्यूरिंग करूंगा, उसके बाद सर्वेइंग करूंगा, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद मैं ऊपर के कॉलम उठाना चालू करूंगा। तो ये 2 दिन का गैप कैसे दूंगा मैं, तो जब भी हम गैप देते हैं दैट इज नोन एज लैग। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया FS+2। FS का मीनिंग क्या होता है, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। फिनिश टू स्टार्ट मतलब ए खत्म होगी तब बी फिनिश होगी। FS+2 का सिंपल मीनिंग ये है कि ए फिनिश हो जाने के 2 दिन बाद रुक के बी स्टार्ट होगी। 2 दिन का मैंने गैप दे दिया। अब इसका कोई भी टेक्निकल रीजन हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ लैग। लीड उसका एकदम अपोजिट होता है। लीड का मतलब ये होता है किसी भी दो एक्टिविटीज को पैरेलली कर देना। मतलब पहला था मेरा फिनिश टू स्टार्ट, अगर मैंने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप था, इसका मीनिंग ये था कि मेरा ए एक्टिविटी अगर आज 18th अक्टूबर को खत्म होता है तो बिना कोई गैप के 19th अक्टूबर को कल मेरा दूसरा एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मेरा ए टू बी नॉर्मल फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। अब मैं 2 दिन का लीड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। लीड का मतलब ये होता है कि मुझे 2 दिन एक्टिविटीज पैरेलली चलानी है। मतलब मान लो मेरी ए एक्टिविटी है, उसका स्टार्ट डेट है 11th अक्टूबर एंड उसका एंड डेट है 18th अक्टूबर। तो 2 दिन लीड का मतलब ये हो गया कि बी एक्टिविटी 17th को ही स्टार्ट हो जाएगी। 17 और 18 ये 2 दिन के लिए दोनों एक्टिविटीज पैरेलली चलेंगी, ए और बी, और उसके बाद तक बी एक्टिविटी चलती रहेगी, 18th को ए एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं गैप की जगह लीड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक्टिविटीज को ओवरलैप कर रहा हूं। ये 2 दिन ए एक्टिविटी भी चलेगी, बी एक्टिविटी भी चलेगी, उसको बोलते हैं लीड इंट्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज लीड। इस टाइप की हमारी एमएसपी की स्क्रीन दिखती है पूरी। ये टास्क टैब, रिसोर्स टैब, रिपोर्ट टैब, प्रोजेक्ट टैब, व्यू टैब, फॉर्मेट टैब, टास्क नेम्स हो गए। ये स्क्रीनशॉट मेरे ही हाथ के बनाए हुए प्रोजेक्ट का मैंने डाला हुआ है कभी का पुराना। ड्यूरेशंस हो गए, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रीडेसेसर्स। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप है 1SS मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट, SS स्टार्ट टू स्टार्ट, FS मतलब फिनिश टू स्टार्ट प्लस 5 डेज।
ये सारा लिंक्स है यहाँ पे, और यहाँ आप जो लिंक देते हैं वह ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट बनते जाता है। ये जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो मेरी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होती है, मेरी लास्ट एक्टिविटी की जो फिनिश डेट होती है वो मेरे पूरे प्रोजेक्ट की एंड डेट होती है। ऐसे हमारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं हम लोग। Okay, there were many things that is left, but we'll stop the session here so that हम लोग doubts ले सके. So this was just a brief of MSP. Obviously, it's not possible to cover everything. It's just a brief to let you know the way we teach, how what things we cover. एक थोड़ा सा brief और दे देता हूँ। जो भी हम लोग 21 सेशंस में कवर करेंगे, सारा मेरी करा हुआ यहाँ पे स्क्रीन का रिकॉर्डिंग एक पोर्टल है प्रो ट्रेनी का, जिसका आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस पे सारे वीडियोस डले रहेंगे, वो सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, मतलब हर लेक्चर होने के बाद लेक्चर की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग विथ माय ऑडियो एज इट इज अपलोड हो जाएगी। मैंने हर लेक्चर के प्रेजेंटेशंस बना रखे हैं, जिसमें मैंने सारे शॉर्टकट्स मेंशन कर रखे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोजेक्ट टैब, देन प्रोजेक्ट मैनेज, देन इसके बाद ऐसे शेड्यूल बनाए, रिसोर्सेज यहाँ से एंटर करें। जो मैं प्रैक्टिकली आपको प्रोजेक्ट की फाइल में करके बताऊंगा, वो सारी चीजें मैंने प्रेजेंटेशंस बना के ऑलरेडी मेंशन करी हुई है। हर लेक्चर के बाद वो प्रेजेंटेशंस आपको मिल जाएंगी एंड वो एमएसपी की फाइल आपको मिल जाएंगी, जो फाइल पे हम उस दिन काम करेंगे, ताकि सेम डे आप लोग नाइट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा डेटा डे टू डे लेवल पे आपको मिलता जाएगा। शुरू के एक आध दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सबका आईडी क्रिएट होता है, पासवर्ड क्रिएट होता है, उसके बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। डेली आपको ये सारी चीजें मिलेंगी रिगार्डिंग एमएसपी। नाउ आई विल स्टॉप हियर। आपको कोई भी डाउट हो, आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपको चैट बॉक्स में पोस्ट करने में नहीं कंफर्टेबल है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क आल्सो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन एनीथिंग रिलेटेड टू एमएसपी, रिलेटेड टू प्लानिंग, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको कुछ भी पूछना हो, यू गाइस कैन आस्क। Hello, I have one question. Yes sir. How it is different in if I make program in Excel and MS Project or Primavera? I can make in Excel also. यस सर, शेड्यूल तो हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, बट एक्सेल में ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। अगर हम बेस से स्टार्ट करें तो सबसे पहले लिंक्स नहीं होते हैं टास्क टेक्निकली। लिंक्स के बाद हमारा उसमें आप रिसोर्सिंग उसमें ऐड नहीं कर सकते, कॉस्टिंग ऐड नहीं कर सकते, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस उसमें नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं एमएसपी में जो एक्सेल में नहीं हो सकती। एक्सेल में हर चीज के लिए अलग अलग शीट होती है, इसमें टेक्निकली पूरा शेड्यूल पैरेलली बनते जाता है। One more, can you share the screen for that relationship start to finish? Yeah, sure. Finish to start you are telling me, or start to finish? Start to finish. थोड़ा मैं जानता हूँ, Yeah. YouTube पे मैं सीखा है। हाँ हाँ हाँ। तो yes. Start to finish, right? Yes. ये एरो उल्टा लगा है शायद आप, it's like opposite way. The नहीं finish सर, ये should be linked to start of A. That is the main. नहीं सर, वो फिनिश टू स्टार्ट है। स्टार्ट टू फिनिश मींस ए एक्टिविटी स्टार्ट तभी हो सकता है जब बी एक्टिविटी फिनिश होगा। एंड्स तो ये दोनों एंड्स ही लिंक्ड होंगे, ये एंड्स तो सही लिंक्ड है। तो ये एरो इधर आना चाहिए ना ए को, इट इज लिंक टू बी। हाँ, वो एरो इधर हो या इधर, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लिंक ये दोनों ही रहेगा। लाइक ए का स्टार्ट पॉइंट विल बी लिंक्ड टू बी का फिनिश ओनली। वो एरो से इट्स नॉट टेक्निकल कि ये एरो यहाँ है तो ए का स्टार्ट और बी का फिनिश लिंक्ड है। इसका बेसिक मीनिंग ये है, जैसे हम फिनिश टू स्टार्ट की बात करें तो उसमें ए का फिनिश और बी का स्टार्ट लिंक्ड है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ए का स्टार्ट और बी का फिनिश लिंक्ड है। टेक्निकली यस, एरो पॉइंटेड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बट लिंक ये सही है। एरो इधर या इधर हम कैसा भी समझ सकते हैं, वो हमारे उसके हिसाब से। बेसिकली ए को हम प्रीडेसेसर मानते हैं हमेशा, इसीलिए वो एरो बी की तरफ पॉइंटेड है। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट टू फिनिश, बट इसका टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि एक्टिविटी बी कैन नॉट फिनिश अंटिल एक्टिविटी ए स्टार्ट्स, इसीलिए वो एरो बी की तरफ पॉइंटेड है। താഴെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോസറി ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ മറ്റേ ബുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പുള്ളി അവിടെ താമസിക്കും.
So in 21 days, if we finish this course, we can make a project in MS Project. Yes, definitely, sir. But how to download this? We don't have anything to. सर वो आपको We have to YouTube और we need उस सब पे support. हेल्प लेना पड़ेगा। यस सर, वो मतलब YouTube और उस पे आपको हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे उस बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज उसका कोई भी फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है। हर कोई अनऑफिशियली ही डाउनलोड करता है एमएसपी, तो वो चीज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर सकता इसलिए। Like if you give crack link, we will download and we will start whatever you explain. हाँ वही, वो मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट ये है कि क्रैक्ड वर्जन ही हमें डाउनलोड करना पड़ेगा यूट्यूब से, और ये सारा जब पे आपको प्रोसेस भी पता मिल जाएगा कि कैसे डाउनलोड करें, लिंक्स भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो आप जब when you start teaching, still we are not able to download, so we cannot realize how that software works. We have to download and नहीं, we have to see the reality. हाँ हाँ, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट एक्चुअली उसमें ऑफिशियली मैं हेल्प इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल वर्जन नहीं है। मैं यहाँ बैठ के कैसे ये बात आपको बोलूं कि नहीं सर क्रैक्ड डाउनलोड करो। दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग थिंग कि वो आपको क्रैक्ड डाउनलोड करना है। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स परचेज दिस एमएसपी कोर्स, तो वो 20 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उन 20 में से कुछ तो यंग बॉयज होंगे जो टॉरेंट से और यूट्यूब से यहाँ वहां से इजीली डाउनलोड कर लेंगे, वो फाइल शेयर कर देंगे, बट मैं ऑफिशियली वो बात नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफिशियल वर्जन। So as mentioned in the chat, if two courses run parallelly, so which course we can attend? Primavera and MSP. नहीं सर, वो कैसा है, आप कोई एक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप दोनों के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। दोनों कॉम्बो चाहिए। कोर्स है वो। हाँ, तो दोनों पैरेलली नहीं चलेंगे सर। अगर एक 8 to 9 चलेगा तो एक 9 to 10 चलेगा, एक 7 to 8 चलेगा तो दूसरा 8 to 9 चलेगा, ऐसा है वो। ऐसा नहीं है कि दोनों में से आप एक ही अटेंड कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले ये 21 दिन का खत्म करो फिर वो 21 दिन का ले लो। सर दोनों के इंस्ट्रक्टर अलग अलग हैं, उस पर मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा। आप ये चीज प्रो ट्रेनिंग टीम से डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एक ही दिन में दोनों ओवरलोड हो जाएगा, सो आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे नथिंग कम्स इन माइंड, दोनों क्लैश हो जाएंगे, सो हाँ, तो वो आप सर डेफिनेटली प्रो ट्रेनिंग टीम से डिस्कस कर सकते हैं। वो ऑपरेशंस वाला पार्ट पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वो आप मतलब वो बता देंगे आपको क्या है प्रोसेस उसका, जो भी है। वो पहले प्राइमवेरा करने वाले हैं कि फिर एमएसपी, उस चीज का मुझे भी आप ही एग्जैक्ट लेंगे आइडिया प्राइमवेरा? नहीं। नहीं नहीं, मैं एमएसपी लेता हूँ सर। प्राइमावेरा के दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं, वो प्राइमावेरा में लाइक ज्यादा काम किए हुए हैं। ही टेक्स प्राइमावेरा। ओके। रिकॉर्डेड सेशन विल बी प्रोवाइडेड एट द सेम टाइम। सर उसी दिन रात तक अपलोड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 to 9 क्लास है तो रात में 10-11 बजे तक वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। एकदम सेम टाइम तो नहीं एकदम से हो पाता है, वो पोर्टल पे फाइल वेरीफाई होगा, अपलोड होगा। इट विल बी डन ऑन द सेम डे, दैट इज। अगर लेट नाइट क्लास हुआ हमारा 9 to 10, तो सुबह सुबह अपलोड हो जाएगा वो। ये यहाँ पे डाले हैं देखिए ना, 42 डेज लाइव प्रोग्राम, डे 1 to 21 प्राइमवेरा, डे 22 to 42 एमएसपी। एक मिनट सर। हाँ, तो फिर वो वैसा ही है, फिर कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं। वो वही सर, वो मतलब ऑपरेशंस का पार्ट है, वो हम लोगों को नहीं पता होता पहले से। वो अगर उन्होंने मेंशन किया है तो वो वैसा ही रहेगा फिर। How to get support from you once we finish the course? सर आप कोई भी डाउट, अगर जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उसमें आप लाइफ टाइम भी कोई भी डाउट अपलोड करेंगे, तो आई विल डेफिनेटली बी रिस्पॉन्डिंग यू विद इन 24 आवर्स कि आप ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, या ये अगर वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं तो आई विल बी टेलिंग यू कि लेक्चर नंबर ये का आप रिकॉर्डिंग रेफर कर लो। लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड भी कोई डाउट रहेगा, एमएसपी तो बहुत छोटा चीज हो गया, तो डेफिनेटली आई विल आंसर दैट, बट वील बी कनेक्टेड वाया प्रो ट्रेनी टीम ओनली। आई वोंट बी शेयरिंग माय number or my email id. Everything will be that via that WhatsApp group itself. Anyone has any more doubts? Yes, both the courses will not be running parallel, classes will not clash, we will be taking care of that, so it is clearly mentioned there.
Any more doubts? Anything related to MSP or planning related? We have 5-6 minutes left. No, sir, no. No query, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. We'll end this Have a session good here. night. Thank you, everyone. Hope to see Thank you. everyone joining this session. Thank you so much. Good night.